جو کنیڈین لیڈرشپ ہے جو مثالیں اس کی جانب سے دی گئی ہیں ویسی ہی باتیں پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں جو اس فیصلے کے حق میں بات کریں ان کی جانب سے دی گئی ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ مسلم ممالک مصر ہو، اردن ہو، سعودی عرب ہو، یو اے یہ اس میں کیسے شامل ہوئے ہیں، بلکہ سوال اس وقت سب سے اہم یہ ہو گیا ہے کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں. خاص طور پر اگر برطانیہ کی بات کی جائے، فرانس، ناروے، ڈنمارک، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اس وقت نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں بلکہ یہ پلان جو کہ فی الحال اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر یا بحالی کے لیے ہے، اس سے بھی ناخوش دکھائی دے رہے ہیں. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار ہیں جواد احمد بھٹی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ. کیا ہے اس پلان میں بورڈ آف پیس کی اگر بات کی جائے کہ مسلم ممالک نے تو اس منصوبے پر فوراً سے لبیک کہہ دیا ہے، لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ نیلم شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. جی یہ بڑا انٹرسٹنگ پلان ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، بین الاقوامی قانون نہیں ہے، بلکہ شخصیت پر مبنی ایک چارٹر پیش کیا گیا ہے جس میں پک اینڈ چوز قسم کے شخصیات ہیں. اور اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ، شاید آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے جو اس میں دلچسپ شخصیات جو شامل کی گئی ہیں اس کے بورڈ میں، ان میں دو نام بڑے اہم ہیں، بلکہ کافی زیادہ نام جو ہیں وہ اہم ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں جیرارڈ کوشنر، اس کے علاوہ ٹونی بلیئر ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا ہی نام جو آپ میڈیا پہ نہیں سنتے، ان کا نام ہے یاکیر گابے. یاکیر گیبے جو ہیں وہ بلینئر ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل میں ہوتے. اور اس کے علاوہ اس کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں دو اور بڑی دلچسپ قسم کی شخصیات ہیں. ان میں سے ایک ہیں جو انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ایجپٹ کے، ان کا نام ہے حسن راشد. یہ حسن راشد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2011-2012 کے درمیان مسلم برادرہڈ پہ بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا اور بہت سارے جرنلسٹ کو اٹھایا گیا تھا اور ان کو بغیر جو تھے ٹرائل کے جیلوں میں بند کیا گیا تھا. اور ان کا بہت زیادہ سی سی کے ساتھ تعلق ہے اور یہ اپنی کمیونٹی میں یہ گنے جاتے ہیں کہ بڑے خطرناک قسم کے شخصیت ہیں. ہاکش ان کا سٹائل ہے اور یہ بھی اس ایگزیکٹو بورڈ میں شامل ہیں. اب اس سے زیادہ یہ ہے کہ جی بورڈ جو آپ نے بنا لیا، بورڈ آف پیس، اس میں غازہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ بڑی اس میں امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں غازہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. جو شخصیات اس میں بورڈ میں لائی گئی ہیں وہ بڑی کنٹروورشل ہیں. تو ان سارے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک ایک کر کے. جی یہ اس کو بہت سارے جو کرٹکس ہیں وہ اس کو امپیریلزم کی ایک نئی فارم قرار دے رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے کہ جس میں وہ ویسٹرن ڈیموکریٹک ویلیوز سے دور جاتے ہوئے اور ڈکٹیٹوریل رول کے طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کیا اس کا یہی مقصد ہے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز پر بھی تنقید ہوتی تھی، سیکیورٹی کاؤنسل کی فارمیشن پہ بھی تنقید ہوتی تھی، لیکن چلیں وہاں تو ویٹو پاور 5 ممالک کے پاس تو تھی. یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ملک یا ایک ہی شخصیت جو ہے وہ تمام فیصلے کرتی ہوئی دکھائی دے گی جو بھی آنے والے دنوں میں ہوں گے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اس کو جو چارٹر اس کا بنایا گیا جس میں کچھ آرٹیکلز ہیں، اس کو ڈیلیبریٹلی انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. اس کو جان بوجھ کر ایمبیگوس رکھا گیا ہے تاکہ اس کو کسی بھی طرح منور کیا جا سکے بعد میں. اور عجیب سا یہ چارٹر ہے جس میں ایک طرف وہ کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، یا ان کا جو چارٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہماری دو طرح کی ممبرشپ ہیں. ایک تو آپ کی ممبرشپ ہوگی جو جوائن کریں گے ہماری کولیجن جو ٹیررزم کو ختم کرے گی، اور اس میں کوئی باؤنڈری اسپیسیفائی نہیں وہ کرتے. اب کس کے خلاف یہ ٹیررزم جو ہوں گے آپریشن ہوں گے وہ دیکھنا پڑے گا. دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ $1 بلین دے کے اس جو بی او پی بنا ہے اس کے پرماننٹ ممبر بن سکتے ہیں. ادروائز آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ 3 سال تک محدود ہوگی اور چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے اس کو نکال دے اور جس کو چاہے وہ رکھ لے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح اس کو کیا، اس کو کالونیلزم سے
या इम्पीरियलिज्म से तशबीह देना बिल्कुल सही है, और इसमें कभी भी इंटरनेशनल लॉ में ऐसे नहीं हुआ पहले कि एक शख्स के पास ये सारी जो ताकत है वो चली जाए। ये आपको नहीं लगता कि ये अगर मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत माजरत के साथ मिसाल दूं कि एक जिम खाना क्लब लग रहा है, ये कोई बोर्ड ऑफ पीस या पीस की बहाली के लिए या पीस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इसमें जो शुरका भी हैं और जिस तरह से सिग्नेचर हुए हैं, ऐसे लग रहा था कोई MOU साइन हुआ है। ये ऐसा है कि शायद कोई प्रिविलेज है कि आप इस पेपर पे साइन करें तो मेरे साथ बैठने का और मुझसे करीब होकर बात करने का एक प्रिविलेज है जो आपको मिल रहा है। और पाकिस्तान की शमूलियत को किस तरह से देखते हैं, अभी ये इसमें वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान परमानेंट मेंबर है या 3 साल वाला मेंबर है और क्या इख्तियारात है, लेकिन किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखें, उसमें बॉयज़ क्लब जैसे आपने कहा या जिमखाना क्लब है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक क्लब है कि जिसको चाहे उसमें कर लिया जाए। और इसमें एक अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग इसमें एक जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, अभी तक जिसने को मुकम्मल क्या कहना चाहिए, हैसियत हासिल है इस बोर्ड में शामिल होने की, जिनकी हुकूमत ने उनको इजाज़त दी है, वो सिर्फ हंगरी है। विक्टर ओरबान जो हैं हंगरी के, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से इजाज़त ली है और पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिन्होंने इमीडिएटली इसमें शमूलियत कर ली है। एक तो उन मुल्कों में आपको पता ही है कि रूल ऑफ लॉ की क्या कंडीशन है, जिसमें यूएई है, वो जो है किंगशिप चलती है। पाकिस्तान में भी कोई पार्लियामेंट से इजाज़त नहीं ली गई और इसको यस कह दिया गया। जो हुकूमत बैकिंग के साथ जो आया है इस क्लब में मेंबर, वो सिर्फ हंगरी है। इसीलिए यूरोप में, बरतानिया में, फ्रांस में, ऑल स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ ने हर एक ने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से ये अभी इजाज़त नहीं ली। इसमें वो पार्लियामेंट में जाएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। और इसी तरह चाइना और रशिया है जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम इसमें शामिल अभी शमूलियत नहीं कर रहे। सही। आपको क्या लगता है कि बरतानिया कितना रेजिस्ट कर पाएगा इस हवाले से, क्योंकि ऐसा लगता है अपेरेंटली कि ग्रीनलैंड का जो को एनेक्स करने का मंसूबा है, डोनाल्ड ट्रंप उससे थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म की टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हुए, फोर्स के इस्तेमाल से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ की हिमायत बोर्ड ऑफ पीस की जीतना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ग्रीनलैंड को भी इस वक्त से पुश डाल दिया है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मेरा नहीं ख़्याल कि यूके इसमें शमूलियत करेगा, क्योंकि एक तो पार्लियामेंट्री निज़ाम है, यहाँ पे उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगी, और यूके कभी भी ये नहीं चाहेगा, या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि ऑलरेडी एक ताकतवर शख्सियत या ताकतवर मुल्क को आप और ताकत दे दें, इस तरह उसकी कोalition जॉइन करने का, जिसका इंटरनेशनल लॉ में कोई हैसियत नहीं है। तो यूके तो अभी मेरा नहीं ख्याल इसको ज्वाइन करेगा, और फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए अगर इस तरह की कोई प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे कीयर स्टारमर जो है, वो अपने आप अगर ऐसी कोई स्टेप लेते हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, और ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। सही। आप यकीनन जो बरतानिया और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात हैं, उनकी तारीख़ कितनी पुरानी है और किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या डिप्लोमेटिक मामलात हों, सबसे ज़्यादा अहम इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को समझा जाता है, अमेरिका और इजराइल के अलावा। आपको लगता है कि इस वक्त बरतानिया कोई नई तारीख रकम कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी या उनके फ़ैसलों की वजह से बरतानिया अमेरिका से हटकर, क्योंकि बरतानिया पे हमेशा यही इल्ज़ाम रहा कि जहां अमेरिका ने कदम रखना है वहीं बरतानिया ने कदम रखना है, बरतानिया इस वक्त कोई अलग तारीख रकम कर सकता है? जी, देखिए, बरतानिया के लिए बड़ा मुश्किल है अमेरिका के बगैर चलना। आपको पता है कि इनके डीप जो स्पेशली फाइव आइज़ हैं, जिनको कहा जाता है, उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो हमारे आपको पता है, यहाँ तो एक फेमस जो पॉलिटिकल हलके हैं उसमें मशहूर है, अगर अमेरिका कहते हैं कि जंप, तो जो बरतानवी हैं वो ये नहीं पूछते कि क्यों, वो पूछते हैं हाउ हाई। वो कहते हैं जंप, वो कहते हैं हाउ हाई, हम कितना ऊंचा छलांग लगाएं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है उसको रजिस्ट करना। एट द सेम टाइम जो सिचुएशन चल रही है, अगर जो कियर स्टारमर या पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अगर इसको ज्वाइन करते हैं, तो वो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को अंडरमाइन कर रहे हैं, बल्कि जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो आइन है, उसके उसके खिलाफ जाते हैं।
उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, इसलिए मैं ये अगेन कहना चाहूँगा कि मुझे फोर्सीबल फ्यूचर में नज़र नहीं आता कि यूके इस क्लब को ज्वाइन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के जो अब तक फैसले हैं और जो एडवेंचर्स वो कर रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत में और ऐसा लगता है कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शख्सियत में कोई ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा कि अभी बोर्ड ऑफ पीस वो फैसले जो यूनाइटेड नेशंस भी कर सकती थी, जो सिक्योरिटी काउंसिल भी कर सकती थी, उन फैसलों के लिए एक नया बोर्ड तश्कील दे दिया गया है कि मतलब कंटेंट चाहिए उनको, हर आए दिन उन्होंने एक नया कंटेंट देना है, अटेंशन हासिल करनी है पूरी दुनिया की। किस तरह से देख रहे हैं आप उनकी पर्सनालिटी को? देखिए, उनकी पर्सनालिटी तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पे तज्जिया दिया हुआ है। फ़नी सी पर्सनालिटी है और एक एक स्कूल बुली की पर्सनालिटी है। जैसे स्कूल में होते हैं बुली, जो बुली हो गया उसको कर लेते हैं, जो नहीं हो सका उससे वो डर जाते हैं। उससे ज़्यादा ये जो प्लान बनाया गया है किसी भी चीज़ से ज़्यादा, क्योंकि ये जब गाज़ा का जेनोसाइड शुरू हुआ, वॉर क्राइम्स जो हुए वहाँ से निकाला गया फ़लस्तीनियों को, और ये बहुत पहले से आ रहा है कि वहाँ पे ये रियल एस्टेट बनाना चाह रहे हैं, और जिसमें याकीर गैबे जैसे लोग हैं, जेरार्ड कुशनर जैसे लोग हैं जिनके रियल एस्टेट एम्पायर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो बहुत इंटरेस्टेड है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें नज़र आता है वो ये है कि ये गाज़ा को एनेक्स करके वहाँ पे एक रियल एस्टेट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ये और लोगों को शामिल करके जो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, जो भी इसमें कोलिशन शामिल होगी, इजिप्ट जैसे मुल्कों को, वो हमास के खिलाफ उनको और क्लियरली उन्होंने कह भी दिया कि उनको गैर मुसल्लह करना है, और फिर वो हिजबुल्लाह में भी कर सकते हैं, लेबनान में भी जा सकते हैं। इनकी कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई। जो सबसे वरिंग चीज़ है कि ये अगर इस कोलिशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये क्या यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन जो है, यूएनएससी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके पैरेलल एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि नज़र आ रहा है, ताकि ये अपना जहाँ भी जाए ताकत के ज़ोर से चीज़ें हथिया सकें और कानून को अपने मुताबिक चला सकें। बिल्कुल, आखिर में मैं चाहूँगी कि जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है उस पे ज़रूर कमेंट करें। क्या बज़ाहिर लोगों को लग रहा है कि शायद इस वक्त पाकिस्तान के माशी जो चैलेंजेस हैं और जो सियासी अनरेस्ट है उसकी वजह से पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहता? साउथ एशिया की अगर बात की जाए, सबसे कम टैरिफ्स पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी मसनूआत पर लगाए गए हैं, तो पाकिस्तान एक ऐसा दुश्मन नहीं बनाना चाहता जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। क्या यही स्ट्रैटेजी है, या आपको लगता है वाकई पाकिस्तानी हुकूमत बिलीव करती है कि बोर्ड ऑफ पीस आगे जाके कोई रिलीफ दे पाएगा पैलेस्टीनियंस को? देखिए, अगर सबसे पहले तो पाकिस्तानी जो निज़ाम है, जो आइन है, वो कसीरुल जहती पे मुश्तमिल है कि जहाँ पे सारे मिल के फैसला करते हैं। पार्लियामेंट जो होती है उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इसमें तो मंजूरी ली नहीं गई, आपने खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही उसमें चले गए। और ऐसा नहीं है, देखिए ट्रंप इज, आपको देखना पड़ेगा, वो बिजनेसमैन है। ही इज नॉट गोना गिव एनी रिलीफ, खासकर पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान को ऐसी रिलीफ मिल जाए कि वो इकनॉमी जो उसकी मैशियत है वो ठीक होना शुरू हो जाए या इकॉनमी बेहतर होना चाहिए। ये अच्छा ख्याल ज़रूर है, लेकिन इसमें हकीकत कोई नहीं है, और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इसमें हो हासिल कुछ नहीं होगा। ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। पाकिस्तान को अपने ही कॉन्संट्रेट करनी चाहिए, अपने इंटरनल मैटर्स को पहले, पॉलिटिक्स को, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करना चाहिए। देखें, एक लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा, जो रूल ऑफ लॉ है उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कनेक्शन होता है। अगर किसी भी कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे कभी भी आप मैशियत को और इकोनॉमी को फलता फूलता नहीं देखेंगे, और यही पाकिस्तान का होगा। इस बोर्ड को ज्वाइन करने से, इस फोर्स को ज्वाइन करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, नाम में तो पीस है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरह का ये अमन है और किस तरह से ये बोर्ड काम करेगा, क्या इस्लाहात करेगा। इसका जो फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी मौजूद है, वाज़े नहीं है। बहुत सारे इख्तियारात कंट्रीज़ के पास कितने होंगे, ये जो $1 अरब देने हैं, ये किस पॉइंट पे होगा, किन लोगों को देना पड़ेगा, पाकिस्तान के हवाले से भी वाज़े नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ 3 साल तक इसका हिस्सा
رہے گا یا پرماننٹ طور پر اس کا ممبر بن جائے گا. لیکن اگر پاکستان کو پرماننٹ ممبر بننا ہے تو پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت ویسے ہی ہر وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن اور پر ہوتی ہے, ICU میں ہوتی ہے, وہ $1 ارب صرف اس بورڈ کا حصہ بننے کے لیے دے گا تو یقیناً پاکستان میں جو اپوزیشن ہے, پاکستان میں جو ایون حکومتی شخصیات بھی ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے.